بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز اور اپنے سوشل میڈیا گروپس میں۔ اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر 0308 4379 661 0308 4379 661۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ سورہ یونس میں موجود ہے، اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بہت مشہور طریقہ استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کے اس کا ختم شریف کروایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی بہت مجرب المجرب ہے، مگر اس آیت کریمہ کے حوالے سے لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ مختصر ترین الفاظ میں آپ کی وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے چند اور خاص الخاص عملیات اس کے عملیات آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ اس کلام برحق سے زیادہ اور بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ جہاں بھی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، تو ایک عام فہم کنسیپٹ لوگوں کے دل میں جو آ جاتا ہے کہ یہ بہت گرم ہے جی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں جی اس کو بغیر اجازت نہیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی اس کو اس طرح نہ پڑھیں، اس طرح نہ پڑھیں، اس طرح نہ پڑھیں۔ تو ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ صرف یہ احتیاط کریں کہ ناپاکی میں بالکل نہ پڑھیں، اور جب آپ لوگ بہت زیادہ دوسری ایکٹیویٹیز میں گپ شپ میں مصروف ہیں اس وقت نہ پڑھیں۔ ادروائز اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگوں کی پڑھنے کے حوالے سے کنفیوژن ہے کہ اس کو کتنا پڑھنا چاہیے، کس حد تک پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ علم الاعداد کے حساب سے جو اس کے اعداد بنتے ہیں وہ 104 بنتے ہیں۔ 104 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں دن میں کسی ایک ٹائم، یا 5 نمازوں کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیں 104 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہو وہ ہم سے رابطہ کر کے باقاعدہ اس کی اجازت دے لیں۔ ان کے لیے تعداد ہوگی 3224 مرتبہ، اور 41 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو ہم اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی سامان چوری ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی چیز چوری اگر آپ کی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، اس کا طریقہ غور سے سماعت فرما لیجئے۔ رات کو اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو کے، اپنی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے فارغ ہو کے، پھر آپ اس عمل کی تیاری کریں، وضو کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ مصلی کے اوپر بیٹھ کے پڑھیں، اور نہ عمل کے درمیان آپ نے کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے، اور عمل کے بعد بھی آپ کو اگر نیند نہ آئے تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں، لیکن کسی سے بات چیت ہرگز نہ کریں، نہ موبائل کا استعمال کریں، نہ اشاروں سے کسی سے بات کریں۔ بہتر یہ ہے کہ عمل کر کے سو جائیں۔ آپ کریں گے اس طرح کہ جب سونے کا ٹائم قریب ہو یا عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں تو فوراً سو جائیں۔ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ عمل کے لیے جب آپ باوضو ہو جائیں تو مصلی کے اوپر بیٹھ کے پہلے محبت سے درود پاک پڑھ لیں، کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد
3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद आप 104 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको 104 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 104 मरतबा पढ़ लें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद 104 मरतबा आप ऐसे इस आयत मुबारका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 104 मरतबा पढ़ें और अपने मुकम्मल तसव्वुर इसी बात पे रखें। जो भी आपकी चीज़ चोरी हुई है, जो भी सामान चोरी हुआ है, कि आपको उस चोर का पता चल जाए या फिर आपका सामान कहाँ है उसका पता चल जाए। तो इस तसव्वुर में दुआ मांग के लेट जाएं और जब तक नींद ना आए उस वक़्त तक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में वाज़ेह तौर पे इसका इशारा मिल जाएगा 1 से 3 दिन के अंदर अंदर। मगर वो ख्वाब बग़ैर ज़रूरत के किसी के साथ डिस्कस ना करें। जिस बंदे के साथ डिस्कस करने का आपको फ़ायदा है या जिसके साथ डिस्कस करके आपके मामले में कोई पेशरफ्त होनी है, कोई फ़ायदा होना है, उसके साथ डिस्कस करें। बग़ैर ज़रूरत किसी के साथ डिस्कस ना करें और उसका शोर हरगिज़ ना मचा दें कि हमने ये देख लिया तो हमारा चोर ये है तो वो है। किसी ज़िम्मेदार बंदे के साथ डिस्कस करना है। ये तरीका हो गया इसका चोरी का पता करने के लिए। अब दूसरा ये कि अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता किसी बहुत बुरी आदत में मुब्तला हो गया है, वो कोई नशा ऐसा करने लग गया है जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है और घर वालों के लिए भी मसाइल बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप ये करें कि चूल्हे के ऊपर 1 से 2 कप के बराबर पानी लेके वो चूल्हे के ऊपर रख दें। पानी पकना शुरू हो जाए और आप इस आयत मुबारका को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत मुबारका को पढ़ना शुरू कर दें और उस वक़्त तक आप पढ़ते रहें जब तक वो पानी बर्तन से बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, पक पक के पानी बिल्कुल गायब ना हो जाए। उसके बाद उस बर्तन को उतार दीजिए चूल्हे के ऊपर से और 101 बार 104 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर दम कर लें जो चीज़ उस शख्स को खिलाई या पिलाई जा सके एक ही मरतबा में। उसको ना तो ज़्यादा मिकदार में हो कि आपको बचानी पड़े और ना ही उस चीज़ को दम करने के बाद चूल्हे के ऊपर पकाया जाएगा, ना ही छुरी के साथ काटा जाएगा। तो ये अमल आप करते रहें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, हालात के मुताबिक आप जो है वो इसको कर सकते हैं। ज़्यादा दिन भी करना पड़े, जैसे जैसे आपको फ़र्क महसूस हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप उसी तरह से करते रहें। अगर किसी को लगता है कि 3 दिन में मसला हल हो गया तो ठीक है, अगर पुराना होगा तो 7 दिन भी लग सकते हैं, 11 भी लग सकते हैं, 21 दिन भी लग सकते हैं। ये किसी भी किस्म का कोई नशे में मुब्तला हो या फिर खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह किसी में अगर ज़ना की आदत बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए करें। बाज़ दफ़ा होता है घरों में शोहर बीवी को छोड़ के गैरों की तरफ तवज्जो देता है, उसके लिए भी ये अमल इसी तरीके से किया जाएगा। अगर बीवी शोहर को छोड़ के बाकी गैर मर्दों की तरफ तवज्जो ज़्यादा देने लग गई है तो उसके लिए भी ये अमल करें। डेली वो चूल्हे वाला अमल भी करें, चूल्हे के ऊपर पानी भी पकाएं, उसके साथ साथ भी पढ़ें और डेली 104 मरतबा किसी चीज़ के ऊपर दम करके उसको खिलाते रहें। अगर खिलाना या पिलाना जो है वो ना हो सके तो फिर 104 मरतबा पढ़ के उस शख्स के ऊपर दम कर दीजिए, वैसे उसके ऊपर दम कर दीजिए। तीसरा तरीका इसका, अगर कोई नाराज़ होकर चला गया है या फिर कोई शख्स गुम हो गया है जो आपको मिल नहीं रहा, जिसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा, या फिर कोई इतना सख्त नाराज़ हो गया है कि वो किसी भी तरीके से मान नहीं रहा, सुलह करने की तरफ नहीं आ रहा, आपके राब्ते में है या नहीं है, अगर आप हक़ पे हैं, आप जायज़ हैं, तो उस शख्स की एक तस्वीर ले लीजिए। उस तस्वीर को सामने रख के आपने इस तरीके से ये अमल करना है कि डेली अपना एक टाइम मखसूस कर लें, दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ लें जितना पढ़ सकें। उसके बाद उस तस्वीर को सामने रख के
1100 मरतबा आयत करीमा आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस आयत मुबारका को पढ़ना है, और हर एक तस्बीह पूरी होने पे हर 101 मरतबा के बाद उस तस्वीर के ऊपर दम कर देना है और अपना मकसद दिल में एक दफ़ा बोल देना है। जब आपने तस्वीर के ऊपर दम करना है तो अपना मकसद भी साथ बोल देना है। ये अमल करते रहें। ये वैसे तो 11 दिन में ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से हल हो जाता है। अगर कोई पेश रफ्त नज़र आई हो और मसला हल ना हुआ हो तो फिर ज़्यादा दिन भी किया जा सकता है। ये भी एक बहुत मुजरब अमल है। ये मियाँ बीवी के मामलात में भी अगर दोनों में कोई ऐसी नाराज़गी हो रही है, वापसी की सूरत नहीं बन रही, तो औरत मैके चली गई है, वापस नहीं आ रही, इस तरह के मामलात के लिए भी ये बहुत मुजरब है। कोई लापता हो जाए उसके लिए भी ये बहुत मुजरब अमल है। वैसे अगर कोई और आपसे नाराज़ हो गया तो उसके लिए बहुत मुजरब अमल है। अगर आपके पैसे किसी ने देने हैं और वो पैसे नहीं दे रहा तो उसके लिए भी ये तस्वीर वाला जो अमल है ये बहुत ही मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वो जो मैंने चूल्हे पे पानी पकाने वाला अमल बताया, उसको अगर ज़्यादा पावरफुल करना चाहते हैं कि उसका ज़्यादा असर हो तो जो चूल्हे पे पानी पकाना है उसकी मिकदार बढ़ा लें। उसको कप से 2 कप मैंने पहले बताया था, उसको गिलास या 2 गिलास कर लें, और जब तक वो पानी खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक आप पढ़ते रहेंगे। मज़ीद इसकी पावर बढ़ाने के लिए ये कि कोई बड़ा बर्तन ले लें, कोई कढ़ाई ले लें, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें पानी डाल के आप अपने पाँव डिप करके खड़े हो सकें या बैठ सकें। तो चूल्हे के पास ही आपने इसका भी इंतज़ाम करना है कि उस बर्तन में अपने पाँव रख के आप खड़े हो जाएं या बैठ जाएं और सामने चूल्हे पे पानी पक रहा हो और आप उस कैफियत में पढ़ रहे हो, और जो चूल्हे पे पानी पक रहा है वो खुश्क हो के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और जो जिस पानी में पाँव डिप किया है इसे एहतियात से किसी साइड पे किसी कच्ची जगह पे डाल दें। उतनी देर उसमें पाँव डिप रखेंगे जितनी देर ये पानी पकने वाला पानी ख़त्म नहीं होगा। इस तरीके से करें तो उस अमल की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो है वो फ़ायदा बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह इस आयत मुबारका का अगर कोई इसका आमिल बनना चाहता है, इसकी ज़कात अदा करना चाहता है तो वो हमसे राब्ता कायम कर लें, उसकी इजाज़त ले लें। अगर दूसरे अमलियात जो बताएं इनमें से कोई करना चाहे तो बेफ़िक्र होकर कर लें। इसके वैसे तो और बेशुमार तरीक़ाकार हैं, लेकिन आप लोगों का जो एक एतराज़ होता है कि मेरी वीडियोज़ लंबी होती हैं, उस एतराज़ से बचने के लिए इसको यहाँ तक मुख्तसर कर रहा हूँ। मज़ीद अगर इसके हवाले से कोई सवाल पूछना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरू पे दे दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं और वैसे भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल अपना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई लंबी बात करनी हो तो वो बराह करम कमेंट बॉक्स में ना किया करें, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लिया कीजिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। One face at center. 0 faces. Pause video.